Hello students, welcome to the class today. So, we are carrying on with the revision and we are carrying on with the revision of chapter 2, Nationalism in India. So children, this chapter that we are carrying forward, this is the revision work that we are doing for the second time. As it's your board. So for the board examinations, you need to know each and every point and each and every part of the chapter. That's why we had decided that we will be carrying on, we will be revising this chapter. And the last video also I had said that being one of the very important chapters of your syllabus, you need to know it thoroughly. कहीं से भी कोई there should not be any hindrance to your understanding of this chapter. Got it? So that was our motive. We wanted that, and with that aim in mind, we are revising it. I hope it is helping you. I hope it helps you in further preparations for your boards. Got it? So last chapter where we had stopped, that was about the Satyagrahi movement. We had started what we were doing in the last class. We were talking about the Dandi March. Got it? Dandi March, the breaking of salt law. What was this law? You know it very well. For 3 marks, it's a very frequently asked question. That salt law was that law by which the Britishers had got the monopoly of manufacturing the salt. They did not want that any other company or any other people in India should manufacture salt. They wanted that it should be whole soul their right and their privilege to manufacture salt. And with this purpose, what did they do? First, they had taken the monopoly to manufacture salt, and they had banned any Indian company to manufacture salt, and on that they had imposed tax on salt. Very smart people. Maximum money extraction and maximum taxes to be taken from the Indians. This had enraged the Indians to such a level where Gandhi ji had asked the Indian people to raise their voice against this law and against this tax, because he said this is one of the most oppressive phase of the Britishers. If we don't stop it now, in the coming days, in the coming years, it would happen that Britishers would be the masters of all these processes. They will not listen to anything and they will not understand what are the things that needs to be practiced and how to be in any country in a very peaceful manner. We are the ones who have given them all the power, but now what is happening is that they are misusing the power. Where we had stopped in the last class, we were talking about the Frontier Gandhi. Frontier Gandhi. Who was this person? He was a leader, a follower, not leader, a follower of M.K. गांधी लिख रही हूं मैं, आप मत लिखना, महात्मा गांधी in Northwest Frontier Province. Got it, children? कहां पे है ये? Yes, of course, it's the present day Pakistan. Northwest Frontier Province. One of the leaders who was, when he was arrested, the people had been very angry. Lot of people were attacked. Lot of people were put behind the bars, and especially in Sholapur. Got it? Sholapur mein this has happened. That people were now people were becoming very violent. Simple thing है, सब्र का एक बांध होता है जो कि अब टूट रहा था. People did not had now patience, okay, to accept all these things. So for this purpose, what was happening was
that a lot of violent attacks were happening everywhere. So what we need to understand here is that the movement that was being carried forward, this is just the revision work that I'm doing, that Gandhi ji in this time, क्या होता था ना, when the movement was at its peak, एकदम टॉप पे पहुंच गया है, ब्रिटिशर्स की हालत खराब है, ब्रिटिशर्स बिल्कुल टूटने वाले हैं, सडनली गांधी जी यूज्ड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट. सेम थिंग हैपेंड विद सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एंड ही साइंड द गांधी इरविन पैक्ट. गॉट इट? कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931. पूरा एक साल तक, for complete 1 year, this civil disobedience, I mean Dandi March had carried forward, and it was such a big blow to the British rule. पहली बार क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स की जड़ें हिल गई थी. They were into real trouble during this time, and women were there, children were beaten, and about 100,000 people were arrested. बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया. ऐसे समय में महात्मा गांधी had called off the movement. He signed the Gandhi Irwin Pact, जिसमें गांधी जी, क्या था ये गांधी इरविन पैक्ट? That गांधी जी had to attend round table conference. This was the second, this was the second round table conference, which was to be held in London, and Gandhi ji and Congress had disagreed to attend this conference. इन्होंने बिल्कुल से मना कर दिया था. तो there was lot of pressure on Irwin कि किसी तरह से गांधी को मनाओ, and if he is not attending the meeting, तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है. It was majorly to stop the civil disobedience. So Gandhi ji had to go and attend. तो Irwin ने कहा कि आप प्लीज जाइए, at least attend the meeting. He asked Gandhi ji. So Gandhi said okay. So on a condition. अब क्या हुआ? गांधी जी ने कहा कि अब आप हमारी शर्तें मानिए, हमने अभी तक आपकी बहुत शर्तें मान ली. That all non-violent political prisoners would be released. Political prisoners would be released from jail. उन्होंने कहा कि आप इनको जो है जेल से छोड़ दो, आप इनको अरेस्ट मत करो. हो गया, बहुत कॉल ऑफ कर दिया है. एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इन्होंने कहा कि आई विल बी अटेंडिंग. सो दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस. सो दिसंबर 1930 गांधी जी ठीक है. Because what is happening is, I'm sorry, December 1931, not 1930, 1931, क्योंकि ये तो 5 मार्च को साइन हुआ. गांधी जी went to attend second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC. पीछे भी मैंने बताया था कि ये RTC मैं लिख रही हूं, आप अपने उसमें मत लिख देना. I mean, because we are making the video, it is internal, that's why I have written it. Now what happens कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए. वहां पे what he had seen, Britishers were playing the game of divide and rule. Yes, you will ask how, कैसे? Of course, I'll let you know. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इस तरह से खेल रहे थे that they had called the depressed class also there, the leader of the depressed class. And the leader of depressed class कौन था? B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar.
ऑलरेडी दे हैड हेल्प्ड द मुस्लिम्स अलॉट, मुस्लिम्स को तो उन्होंने इंडियन से अलग कर ही दिया था, अब ये इनकी दूसरी चाल थी जहां पे ये लोअर कास्ट को भी अलग कर रहे थे ग्रुप से। दे हैव मेड अप देयर माइंड कि लोअर क्लास जितने भी हैं उनको इस मूवमेंट में से हटा देना है। एंड देयर दे सेड कि वी आर गिविंग यू रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, आगे जो भी प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें आपको जो है हम सीट्स देंगे। दे वर वेरी हैप्पी, दे सेड अच्छा है हमको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। तो गांधी जी वॉज वेरी अनॉयड, ही सेड व्हाई हैव यू कॉल्ड मी हियर, have you called me here to find out a solution to the civil disobedience, or you are, they said कि आपका civil disobedience is over, आप तो उसको बंद करके आए हैं, तो now it is over, we are not interested in talking to you anymore, because they were very annoyed with Mahatma Gandhi. The way Mahatma Gandhi was carrying on the movement in India, the Britishers were not very happy with that. So now they were playing their own game in their own manner. So he discovered the government had become a new cycle of repression. All the Congress leaders by that time was arrested. The leaders who were leading the movement, civil disobedience movement को जो carry forward कर रहे थे, उनको arrest कर लिया गया था। तो this was a dirty game that the Britishers had thought of. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बहाने से, यस माय डियर चिल्ड्रन, आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बहाने से इनको बुलाया गया था, लेकिन वहां पे द ब्रिटिशर्स वेर प्लेइंग द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल। गॉट इट? सो गांधी जी फेल्ट वेरी अनॉयड, ही केम बैक एंड ही रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, by this time, most of the Congress leaders were arrested. Got it? इनको इन्होंने क्या किया? अरेस्ट कर लिया। गफ्फार खान and जवाहरलाल नेहरू। क्या होता है कि हिस्ट्री में आपका नाम आने के लिए, योर नेम शुड कम इन हिस्ट्री, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। स्टेइंग इन जेल इज नॉट अ फन एक्टिविटी। सो ऑल दीज बिग लीडर्स कभी ना कभी जेल जरूर गए हैं फॉर सम और द अदर रीजन, लेकिन इट इज फॉर द नेशनल रीजन। ये नहीं कि मार पीट के और गुंडागर्दी करके जेल में चले गए। नो, इट वॉज नॉट दैट, बट फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द कॉज ऑफ द मदर कंट्री। So all these leaders, once upon a time, they had gone to the jail. Okay, Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were in jail. ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उनको खत्म करना था। वो देख रहे थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इतना फोर्स चल रहा है, दे गॉट अ नाइस चांस। तो कांग्रेस को, एंड कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। गांधी जी थे नहीं ना, तो ब्रिटिशर्स को मनमानी करने का मौका मिल गया। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को उन्होंने कह दिया कि ये एक इलीगल पार्टी है एंड ऑल द मूवमेंट दैट वाज बीइंग कैरिड ऑन बाय कांग्रेस शुड बी फिनिश्ड। इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सो lot of steps were taken by the government. No meetings, no demonstrations, no boycott. अगर ऐसा कोई भी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। महात्मा गांधी was very annoyed. He relaunched the civil disobedience movement. ठीक है? So he relaunched civil disobedience movement. Got it? अभी रीलॉन्च करने का कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल वर वेरी अनॉयड बाय दिस टाइम कि इतना जोर शोर से हम मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आके मीटिंग को कॉल ऑफ कर देते हैं। तो
is people, actually the common people have lost interest in the movements by Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी मूवमेंट्स में अब इनको इंटरेस्ट नहीं रह गया था. पीपल वेर रियली सिक एंड टायर्ड कि इतना ज्यादा हम अपना एफर्ट्स डालते हैं एंड रीलॉन्च्ड. उसके बाद मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है. बट इट हैड लॉस्ट मोमेंटम. बाय दिस टाइम क्या हो गया ना कि इसका सारा पावर इस समय तक खत्म हो गया था. एंड इट फिनिश्ड बाय 1934. 1934 तक क्या हुआ कि इसका पूरा पावर जो है वो खत्म हो गया. बिग मूवमेंट that was started with the Dandi March in such a big manner, अचानक से उसका इस तरह से खत्म हो जाना. अचानक से नहीं, मतलब कि आपको समझना पड़ेगा ना. यू नो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द पीपल्स इमोशंस आर हर्ट, जब लोगों के दिल को चोट पहुंचती है ना, तो फिर वो जो है उनका सारा जो विश्वास है ना वो हिल जाता है. द रेस्पेक्ट दैट इज देयर, द डेडिकेशन टुवर्ड्स एनी वर्क, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, जो डेडिकेशन होता है ना, वो खत्म हो जाता है. एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. नाउ व्हाट हैपेंड कि ये हमने पढ़ा कि हाउ द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन सच अ लार्ज स्केल, Dandi March, and in the beginning of the chapter only I had said what we are doing in this chapter. इस chapter में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें we will be understanding what was the movement for the common man. एक आम आदमी के लिए मूवमेंट का क्या मतलब था? What was the meaning of this movement for an आम आदमी? हाँ, the participants, how did they see this movement? How did the people who participated, how participants saw this movement? Participants saw the movement. क्या मतलब था इस मूवमेंट का उनके लिए? Got it? तो अब ये चीज हम लोगों को समझना है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने इस मूवमेंट को किस एंगल से देखा. With what angle have they seen it? So different social groups were there which were participating in the civil disobedience movement, and why did they join the movement? What were their ideals? Non-cooperation का अलग एम था. एम तो सेम था लेकिन मोड ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज डिफरेंट. यहां पे मोड ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज डिफरेंट. यहां पे क्या था? नाउ इट वॉज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इट वॉज अ कंप्लीट स्वराज. जब स्वराज की बात हो रही है तो हाउ इट हैज टू बी सीन इन अ लार्ज मैनर, इन अ बिग मैनर. गॉट इट? तो हम सबसे पहले जिनके बारे में बात करेंगे दैट वी विल टॉक अबाउट रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स. कोई भी मूवमेंट होता है ना, इफ एनी मूवमेंट दैट इज लॉन्च्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, कोई भी मूवमेंट जब लॉन्च करते हैं तो उसमें द फर्स्ट पीपल हु आर अफेक्टेड आर द पीजेंट्स. जो फार्मर्स हैं, द पीजेंट्स हु आर देयर, द पुअर पीजेंट्स, द रिच पीजेंट्स. हाउ वाज देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट? किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया? ये रिच पीजेंट्स में कौन थे? रिच पीजेंट्स में देयर वेयर द पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. गॉट इट? ये नाम आपको याद रखना है. पट्टीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. क्या किया इन्होंने? what was their role in this movement? क्या उन्होंने किस तरह पार्टिसिपेट किया? They were active in the movement. And करते क्या थे? They were producers of commercial crops. यहां पे आती है मेन थिंग. हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, you'll think ना, तो बहुत सारे लोग थे, हम इन्हीं के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? Because they were
producing commercial crops. Got it? अब ये commercial crops क्या है? Cash crops. मनी 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 माइंडेड पीपल. ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था इंडियन से? कुछ नहीं, खाली पैसे चाहिए थे. They just were interested with the money that was available with the Indians. And they were very active in the movement, hard hit by the trade depression, falling prices. हर एक चीजों के प्राइस गिर गए थे. हमने इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो कैश इनकम हैड डिसअपियर्ड. इनके जितना भी पैसा था ना इनका, वो सारा कुछ खत्म होता जा रहा था. एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू. ओके, देयर वॉज इकोनॉमिक डिप्रेशन. ओके, एंड they were unable to pay रेवेन्यू. अब ये ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मतलब टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स को. फिर तो किसी से द पीपल हु हैव बीन गिविंग सो मच ऑफ मनी टू द ब्रिटिशर्स, सडनली उनके पास से पैसा आना बंद हो जाएगा, कैसा लगेगा? इट वॉज अ शॉकिंग पीरियड फॉर द ब्रिटिशर्स कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से पैसा देना बंद कर दिया. तो they refused to pay the government and they said कि reduce the revenue demand. It led to widespread resentment. They said कि हम आपको रेवेन्यू पूरा नहीं देंगे, आधा देंगे. उसमें भी ब्रिटिशर्स रेडी नहीं थे. ब्रिटिशर्स said no, we want complete money. जितना आप अभी तक टैक्स दे रहे थे वही टैक्स चाहिए. So they said then ठीक है, we'll participate in the movement. कि थोड़ा जो मिल रहा था वो भी नहीं देंगे. Are you understanding? सिंपल में समझो. That they were asking for less revenue payment, कि जितना हम पे कर रहे हैं उतना नहीं पे करेंगे. Less revenue payment, but when Britishers disagreed, then they refused to pay revenue. उन्होंने कहा कि अभी जो थोड़ा बहुत भी दे रहे थे वो भी नहीं देंगे. So that is what was creating problem and this is what was their participation. कि जितना टैक्स दे रहे थे, now they were not ready to pay that. And rich peasants, they were very happy when the civil disobedience had started. Now they said this is the right time कि हमको रेवेन्यू पे नहीं करना है. ऐसे में दे मूवमेंट आ गया, तो मूवमेंट को हम सपोर्ट भी कर देंगे और ब्रिटिशर्स को अपोज भी कर देंगे. बोथ द थिंग्स विल हैपन हैंड इन हैंड. एंड देयर वर सम मेंबर्स हु वर देयर. उन्होंने कहा भाई ये सब, बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग इज कि नॉन कोऑपरेशन का जो रिजल्ट था, पीपल वेर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. सो दे सेड कि अब नहीं हम पार्टिसिपेट करेंगे. हो गया, बहुत पार्टिसिपेट कर लिया, नाउ वी आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग. तो उनको फिर जो लोग बहुत गुस्साए हुए थे, दे हु वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस, दे मेड देम अग्री कि नो चलो पार्टिसिपेट करते हैं, लेट्स सी, हो सकता है इसका कुछ रिजल्ट्स आए. लेकिन वही चीज, जस्ट नाउ दैट आई वाज टॉकिंग, दैट द मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1931. When this movement was withdrawn, people were very annoyed and they were very angry. कि ये क्या किया महात्मा गांधी ने? This shouldn't have been done. Okay, and without the revenue rates being revised, मतलब ऐसा होने वाला था कि ब्रिटिशर्स उनकी बात मानने वाले थे. So they were disappointed when the movement was called off. They were disappointed when the movement was called off. Got it? कि रेवेन्यू हम कम देना चाह रहे थे, ये रेट्स अभी रिवाइज होने वाले थे, ब्रिटिशर्स झुकने वाले थे, ब्रिटिशर्स हार मानने वाले थे. सडनली द रिफ्यूजल एंड सडनली कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट
they did not like it. Same was there with the poor peasants. Rich peasants के बारे में हमने पढ़ लिया. Poor peasants का क्या participation था? Poor peasants were not just interested in lowering of revenue demand. बहुत सारे कह रहे थे कि small tenants were there. Tenants means किराए पे जो काम करते थे. Those who were working as tenants for cultivating the land, they had rented from the landlords. लैंडलॉर्ड से जमीन लेके उसका रेंट देते थे उनको. मतलब उस जमीन पे दे कैन ग्रो राइस, व्हीट, एनीथिंग दैट दे वांट, एंड देन दे विल बी पेइंग रेंट टू द लैंडलॉर्ड. नाउ व्हाट हैपेंड कि जैसे डिप्रेशन हुआ, कैश इनकम्स ड्विंडल्ड, कम हो गए. स्मॉल टेनेंट्स जो द पीपल हु वेर वर्किंग एज इन द फील्ड्स एज द टेनेंट्स, किराए पे जो लोग काम कर रहे थे, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट. वो अपना रेंट नहीं दे पा रहे थे. ठीक है, जिस किराए पे उन्होंने लिया हुआ था वो जमीन, वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे. तो लॉट ऑफ दे ज्वाइंड मेनी रेडिकल मूवमेंट्स. ये क्या होता था ना, अनएजुकेटेड, आई मीन लेस एजुकेटेड पीपल, ये क्या होता था, इमीडिएटली दे यूज्ड टू गो वेरी वायलेंट. तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द पुअर पीसेंट्स. Poor peasants, we will be again discussing it in the next video, my dear children. तो तब तक के लिए I wanted to show you the box that is given related to Bhagat Singh. भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस है. I just wanted to show you that from the book. Let me show it to you. Got it, children? चलो देखते हैं. So students, just now we were talking about civil disobedience movement. अभी हमने जो जो बातें की, 2-3 चीज़ें मैं आपको बुक में मार्क कराना चाह रही थी, प्लस द इंफॉर्मेशंस अबाउट भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, एज आई हैड टोल्ड यू जस्ट नाउ. दैट इज़ व्हाट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट नाउ. First thing that you need to remember in this book is this, that the civil disobedience movement had lost its momentum by 1934. एक तो आप ये बताओगे. दूसरा, the time when Gandhi ji had gone to attend the Round Table Conference. December 1931 he had gone to attend the Round Table Conference in London. ये भी आपको इसमें बताना है. The next thing that you need to remember here is the Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. तो जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पटीदार्स ऑफ गुजरात, इनका क्या रोल था इस मूवमेंट में, दिस इज़ व्हाट वी नीडेड टू अंडरस्टैंड. इसको अभी हम लोगों को समझना था. इसके बारे में जस्ट नाउ वी हैड अ टॉक दैट हाउ these people, the rich peasants, have refused to pay the revenue. इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन था, so much of money the Britishers were demanding all the time. So they thought कि कब तक ब्रिटिशर्स को पैसे देते रहेंगे. And now they were not at all in a mood to pay any money to the British government. Got it? एक तो ये मैं बताना चाह रही थी. दूसरा, I wanted to show you this box. This box is telling about Rajguru, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. To the altar of this revolution, we have brought our youth as incense. कि ऑल्टर ऑफ दिस रेवोल्यूशन मीन्स जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसके जो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन है, उस पे हम अगरबत्ती का काम करने के लिए क्या लेके आए हैं, इंसेंस. इंसेंस स्टिक्स यू हैव सीन ना, वो मीन्स विच स्प्रेड्स लॉट ऑफ, तो जिससे कि बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंसेंस. ओके, तो इसमें बहुत सारे यूथ जो थे, दे वेयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जिसमें कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज इस्टेब्लिश्ड. HSRA कहाँ पे हुआ था? इट वॉज इन द फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली. तो इसमें जस्ट सी इट इज मेंशन देयर हियर, भगत सिंह, जतिन दास एंड अजॉय घोष. These were the boys, these were the young leaders who had contributed in this movement. इन्होंने क्या किया कि they were targeting the symbols of British power.
कि जो जो वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है. All that needs to be finished. This actually was their target. And what did they do? Bhagat Singh and Batukeshwar Datta, they threw a bomb in the Legislative Assembly. Legislative Assembly के ऊपर इन्होंने बॉम्ब गिराया. उसी ईयर they tried to blow the train. लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उस ट्रेन को भी उन्होंने कहा कि उड़ा देंगे. तो 23 के एज में भगत सिंह पर चलाया गया, ये केस चलाया गया. भगत सिंह ही सेड कि ही वांटेड टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ, उन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस नहीं, अब जो है बॉम्ब एंड पिस्टल से ही काम लेना है. एंड इसी चीज़ के लिए आई एम इंस्पायरिंग द इंडियंस. सो ही सेड कि रेवोल्यूशन वी कैन डू, फ्रीडम इज देयर, लेबरर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द कंट्री. हमारी सोसाइटी में जो सबसे छोटे लोग हैं, उन्हीं लोगों की जय जयकार होनी चाहिए. एंड रिवॉल्यूशन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. सो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले इट वॉज गिवन बाय भगत सिंह. प्लीज रिमेंबर. गॉट इट? So here I am stopping. We'll be continuing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.